بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس دنیا میں آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ اس دنیا میں اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ کسی کے خلاف نفرت رکھیں۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا بچوں کی شکل میں ملا کرتی ہیں۔ اپنے دل کو زندہ رکھو، پھر دیکھنا ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ جو انسان اس دنیا میں پیسے کی محبت سے اور لذت وجود سے نہیں بچتا، اس کا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس نے بن مانگے عطا کیا تو وہ تمہیں مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ اس دنیا میں عام آدمی اپنا حق مانگے گا اور جو صاحب توصیف ہے وہ اپنا حق بھی دے دے گا۔ ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہیں تھی، کیونکہ اگر انسان کے پاس نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا بلکہ یقین سے نکلتا ہے۔ جب تم پریشان ہو تو خالی سجدہ کر لو، اور جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ۔ جب اس دنیا میں تمہیں کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو تمہارا ضمیر تمہیں سزا دیتا ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنا اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی جواب بھی انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک کہ جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ اس دنیا میں آپ کا گفتگو کرتے وقت آواز کا بلند ہونا آداب کی کمی ہے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر آپ کا دل پریشان ہے تو سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے۔ اس دنیا میں جس خطرے کا آنے سے پہلے احساس ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کو اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ اس دنیا میں عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ انسان کو عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں اس کا ٹوٹا دل پہنچا دیتا ہے۔ اس دنیا میں نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسروں کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ اگر تکلیف آنے پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے، برباد ہو گئے، اور اگر گناہ عاجزی پیدا کرے تو شکر ہے بچ گئے۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان کے فرق کا نام غم ہے۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کرو یا پھر اللہ کے حوالے کر دو۔
लोगों के अमाल को कभी ना देखो, बल्कि अपने अमाल करते जाओ। अपने अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखो, क्योंकि फ़कत एक वही ज़ात है जो अंधेरे में दिया जलाए रखने पर कादिर है, और वही है जो बेचैन दिलों को सुकून देता है। फरिश्तों और जन्नत के पास इबादत तो है, लेकिन मोहब्बत और इश्क की मस्ती सिर्फ इंसान के नसीब में है। अगर नीयत साफ हो तो गलतियां माफ़ हो जाती हैं। गुनाहों में मुब्तला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता। वो अल्लाह होकर भी आपकी मर्ज़ी पर क्यों चले, जबकि आप उसके बंदे होकर उसकी मर्ज़ी पर नहीं चलते। जो करना है अल्लाह ने करना है, और अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। इस दुनिया में आपका अपने गुनाहों का एहसास ही तौबा की इब्तिदा है। अपनी ज़ाती कायनात में आपने जितना हिस्सा अल्लाह का रखा है, उतना ही अल्लाह की कायनात में आपका हिस्सा है। जब आग के अंदर दिल आ जाए तो दिल में आंखें पैदा हो जाती हैं। इस दुनिया में गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है, और वहीं सही इरादे की नाकामी भी सवाब है। इसलिए अपने इरादे की इस्लाह करो। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो समझ लें आज ही से आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर मखलूक खालिक से ताल्लुक़ में रहे तो सलामत, वरना तो फिर क़यामत ही क़यामत। इस दुनिया में हम हर हालात से समझौता कर लेते हैं, बस हम इंसानों से समझौता नहीं करते। इस दुनिया में तौबा का ख्याल खुशकिस्मती है, क्योंकि जो गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदकिस्मत है। अल्लाह को ये बात सुनने का शौक़ है कि इंसान कहे कि मुझसे गलती हो गई। गम को भी इस तरह कबूल करो जिस तरह तुम खुशी को कबूल करते हो, क्योंकि ये दोनों ही एक ही मुसन्नफ़ की लिखी हुई हैं। इस दुनिया में ख्याल बनकर जिंदा इंसानों के जहन में रह जाना भी जिंदा रहने का एक तरीका है। अकीदे और नज़रियात से मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि मोहब्बत इंसान से होती है, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो तो खुदा से मोहब्बत या इस्लाम से मोहब्बत नहीं हो सकती। जहाँ आपकी पसंद की ज़िंदगी ना हो, वहाँ खामोशी से गुज़र जाना ये भी अल्लाह का शुक्र है। इस दुनिया में ऐसा रिस्क जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और हलाल भी हो, ऐसा रिस्क करीम कहलाता है। अगर अपनी नींद को इबादत बनाना है तो वुज़ू करके सोया करो। इस दुनिया में छोटे दर्जे के लोग बहस करते हैं और बड़े दर्जे के लोग अदब करते हैं। खुशी ना रही तो गम कब तक रहेगा, इसलिए गम को भी 4 दिन का मेला समझकर गुजार लो। सुकून आपकी ज़ात से बाहर किसी जगह का नाम नहीं, बल्कि इसी जगह के अंदर खुश रहने का नाम है। अगर तुम्हें ज़ेवरात की ख्वाहिश है तो फिर कान में सुराख तो होंगे ही। दुनियादार के लिए जहाँ सब्र का हुक्म है, वहाँ अल्लाह वालों के लिए शुक्र का हुक्म है। इंसान जब अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। तिनके को भी कभी हकीर ना समझो, वरना वो तुम्हारी आँख में पड़ जाएगा। इस दुनिया की सबसे बदतरीन खुशी वो है जो किसी को दुख देकर हासिल हो। दूसरों की ज़िंदगी आसान करिए और अपनी आखिरत। हज़रत अली ने फरमाया कि नाराज़गी ज़ाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाज देता है। हज़रत अली ने फरमाया कि जब भी अपने रब से दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगना, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को
मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। इस दुनिया में अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना कर दे। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। अगर तुम इस दुनिया में लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो अपने आवाज में नरमी पैदा करो। किसी पे तब तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज करो क्योंकि वो तलवार की तरह है, क्योंकि जिस तरह तलवार देखने में खूबसूरत और असर में खतरनाक होती है। इस दुनिया में अपने दोस्त को बस इतने राज बताओ कि कल अगर वो तुमसे दुश्मनी पर आमादा हो जाए तो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इंसान 3 चीजें कभी नहीं भूलता। पहला, अपना टूटा हुआ मान। दूसरा, लाहासिल दुआ। और तीसरा, अपनों का दिया धोखा। हजरत अली ने फरमाया कि कभी गम ना करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा वो लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं कि मेरे लिए बस मेरा अल्लाह काफ़ी है। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं कबूल होने में वक्त नहीं लगता। जब खुदा से मोहब्बत हो जाती है तो लोगों से दिल घबराने लगता है। इस दुनिया में तन्हा इंसान को कभी तन्हा मत समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इस दुनिया में इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह ही है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मान भी जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करता और कभी अपने पास से मायूस नहीं लौटाता। हम ये तो चाहते हैं कि खात्मा ईमान पर हो, मगर हम ये क्यों नहीं चाहते कि जिंदगी भी ईमान वाली हो, क्योंकि याद रखना, जैसी जिंदगी वैसी मौत। तकलीफ और दर्द एक ऐसा तोहफा है जिसमें अल्लाह की रहमत पोशीदा होती है। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा अजियत में रहोगे, इसलिए या तो अपने आप को मजबूत कर लो या फिर मसरूफ कर लो। इस दुनिया में सबसे परसुकून वो है जिसको कम या ज्यादा की फिक्र नहीं। इस दुनिया में जिंदगी हमें बहुत कम वक्त के लिए मिलती है और कितने वक्त के लिए ये किसी को मालूम नहीं, और इसको हम अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम उसको बेहतर बना सकते हैं। गुनाह को गुनाह समझते रहना चाहिए और अपने अल्लाह से हर वक्त डरते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन से हालात में जिंदगी की शाम हो जाए। इस दुनिया में आपके अखलाक की कदर भी लोग उसी वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो, क्योंकि गरीब कितना ही खुश इखलाक क्यों ना हो, लेकिन उसके अखलाक को उसकी मजबूरी ही समझा जाता है। अगर जिंदगी इतनी ही अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोता हुआ नहीं आता। जब इंसान के दिल में मैल, तबीयत में जिद और लफ्जों में मुकाबला आ जाए, तब इंसान जीत तो जाता है, लेकिन ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। नफ्स बहुत जालिम है, कभी गुनाहों में मुब्तिला करके रब से दूर करती है, तो कभी नेकियों और इबादतों के गुरूर में मुब्तिला करके अमाल को ख़राब कर देती है। इसलिए ऐ मेरे रब, हमें नफ्स के शर से हमेशा महफूज रख। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतेह अल्लाह ताला के खातिर अपनी नफ्स पे काबू पा लेना है। छोटी सोच और तंग दिमाग लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनको हमेशा हर चीज़ में गलतियां ही नज़र आती हैं।
किसी की गलत बात को याद रखना दिमाग पर बोझ रखने जैसा है। इस दुनिया में रोशनी तारुफ के मोहताज नहीं होती, क्योंकि अगर कोई उसे नहीं जाने तो वो अंधा है। दुनिया में मिलने वाले 3 सबक ऐसे हैं जिनसे बढ़कर कोई उस्ताद नहीं। पहला भूख, दूसरा हार और तीसरा खाली जेब। ये जिंदगी है, इसलिए अगर यहाँ उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, और अगर बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। आज हम ऐसे मुसलमान हैं जो ना बेटी का निकाह खुद पढ़ा सकते हैं और ना बाप का जनाजा, लेकिन सुबह शाम हम मुसलमान ही अपने उलमाओं को बुरा भला कहते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता समझते हैं, और उनका काम भी फरिश्तों जैसा ही है, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। झूठ बोलना आसान है, छिपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनाना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर जितना अजर पाते हैं, और वहीं कुछ लोग कंकर जितनी नेकी करते हैं पर पहाड़ जितना अजर पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेकी पर नहीं बल्कि नियत पर अजर देता है। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, इसलिए जो पास है उसे संभाल कर रखना, क्योंकि इस दुनिया में खोया हुआ इंसान दोबारा नहीं मिलता। इस दुनिया में दूसरों के गम से बेगम हो जाना इंसानियत नहीं है। जब अपने ही अपनों को जलील करें तो दर्द ज़्यादा होता है। मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है, क्योंकि बिना रूह के तो घर वाले भी घर में नहीं रखते। मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आया करो, क्योंकि मुश्किल वक्त सब पर आता है। किसी का सब्र देखने के लिए तो किसी का ज़र्फ देखने के लिए। इस दुनिया में आदाब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। अपने से अच्छे को तलाश कर, क्योंकि अपने जैसे के साथ तो उम्र ज़ाय करेगा। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई भी शैतानी कुव्वत आपको महरूम नहीं कर सकती। इस दुनिया में नफ्स अपने सिवा कुछ नहीं देखती, जबकि हमारी रूह सारा आलम अपने अंदर देखती है। इस दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हकीकत उल्टी नजर आती है। तौबा करते रहा करो, क्योंकि जिंदगी कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। इस दुनिया में मिसाल देना आसान है, लेकिन मिसाल बनना बहुत मुश्किल। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे, और कमज़ोर इतना है कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है। हमें हुक्म तो नफ्स मानने का था, लेकिन हम सब ने अपने ज़मीर मान लिए हैं। इस दुनिया में मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसके साथ चलती उसकी औरत के लिबास से लगाया जा सकता है। हमारी ज़िंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, क्योंकि जब भी लगती हैं या तो किसी की असलियत दिखा देती हैं या फिर कुछ नया सिखा देती हैं। आज की औरत आज़ादी मगरिब वाली चाहती है और हुकूक इस्लाम वाले चाहती है। इस दुनिया में खुशी का ताल्लुक आपके हालात से नहीं बल्कि आपके ख्यालात से है। इस दुनिया में आपकी ज़बान का ज़्यादा चलना अकल के कम होने की निशानी है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी ही होती है। कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता,
मगर हकीकत ये है कि औरत के बगैर कोई घर घर नहीं होता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे, तब भी ये उसका कफ़ारा नहीं हो सकता और ना ही उसको कोई अजर मिलेगा। इस दुनिया में माँ की दुआ अपनी औलाद के हक में बहुत तेज़ी से कबूल होती है। इंसान को उसके जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। ग़ीबत ना करो क्योंकि ये दोज़ख की खुराक है। इस दुनिया में लोगों को हलाक करने वाली 3 चीज़ें, पहला तकब्बुर, दूसरा हिर्स और तीसरा हसद। गमों को दूर करने वाली बेहतरीन चीज़ तकदीर इलाही पर भरोसा करना है। इस दुनिया में 2 अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। लोग अच्छे पढ़ने और अच्छे लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो हैं जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। इस दुनिया में शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब ना देना और वहीं तीसरा दर्जा बदइखलाकी का जवाब इखलाक से देना। लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाती हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और ज़बान को समेट कर रखें। अल्लाह के आगे झुका करो, फिर देखना वो किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मकाम पर हमें गिनने से पहले ही थाम लेता है। अगर इस दुनिया में तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है, तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों अपनी मग़फ़िरत को बर्बाद कर दिया। इंसान की मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह ही होती है, क्योंकि हर मंजिल धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हो, बल्कि इसके लिए सिर्फ आपका रहम दिल होना ही काफ़ी होता है। जब आपके पास कोई परेशान हाल, मजबूर या मुसीबत ज़दा आ जाए, तो ये ना सोचें कि ये उसकी आजमाइश है, बल्कि आप ये सोचें कि ये आपकी आजमाइश है। जब कभी भी तुम्हें अपने रिस्क में कमी नज़र आने लगे, तो कुछ माल अपने अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलता, बल्कि ये तो एक नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की दी हुई थोड़ी रोज़ी पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उससे थोड़े अमल पर भी राज़ी हो जाता है। इस दुनिया में जो शख्स गुनाहों के ज़रिए अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है, तो उसकी आरज़ुएं बहुत देर से पूरी होती हैं, और वो शख्स जिस चीज़ से डरता है, सबसे पहले उसे उसका सामना करना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा और सुबह की नमाज में कितनी फजीलत है, तो अगर उन्हें घुटनों के बल भी आना पड़े तो वो फिर भी मस्जिदों में आएंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में जो घर के अखराजात और गुर्बत के खौफ से शादी ना करे, वो हम में से नहीं है। अपने बाप से मुंह ना फेरो, क्योंकि जिसने अपने बाप से मुंह फेरा उसने कुफ्र किया। जिंदगी में 2 लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वो
جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی تمہاری ماں۔ پتھر سے کسی نے کہا کہ کیوں نہ تم انسان بن جاؤ، تو پتھر نے جواب دیا کہ ابھی میرے اندر اتنی سختی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ میں انسان بن جاؤں۔ اے مولا، مجھے صبر میں رکھنا اور کبھی گرنے نہ دینا، نہ ہی کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑا مشکل کام ہے، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ اگر ہم اپنی ہر مسکراہٹ پر خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اپنے آنسوؤں کے ہر ایک قطرے کے لیے اپنے اللہ کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ اس دنیا میں لوگ آپ کی باتوں کے ہزار مطلب نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت کو آپ کا اللہ جانتا ہے، اس لیے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، نہ کہ بندوں کی مرضی کے مطابق۔ اپنی گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنے سے تم اپنی مشکلات بڑھا لو گے۔ اس دنیا میں کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو ہمیشہ میٹھا پھل دیتا ہے۔ اس دنیا میں جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اپنے اندر اتنی ہمت ضرور پیدا کرو کہ آپ جن کے لیے آج صرف مذاق تھے تو کل آپ ان کے لیے ایک مثال بن جاؤ۔ اس دنیا میں دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور اللہ کے لیے آپ کا قیام۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں دیری نہ کرو۔ اس دنیا میں بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 5 جگہوں پہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ اس دنیا میں برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دستری پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو تم جاہل ہو۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اے انسان، تو کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، کیونکہ اس نے تجھ سے پہلے نہ جانے کتنوں کو ہی دھوکہ دے دیا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمان میں جب محبت جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو اور یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔